بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا۔ چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوک سے مر گیا، حاکم شہر نے کہا کہ زہر سے مر گیا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے اندر معاشی بحران کے باعث مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہے کہ جس تھمنے کا نام نہیں رہا۔ پاکستان کا کوئی بھی ایسا شہری نہیں ہے جو اس سے نہ گزر رہا ہو، اس پریشانی سے نہ گزر رہا ہو، ان مشکلات سے نہ گزر رہا ہو۔ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ میرے ذاتی تجربے میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتے، بلکہ انہوں نے ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، رات کو کھانا کرتے ہیں، دوپہر کے کھانے کا کانسیپٹ پاکستان کے اندر دم توڑ چکا ہے، وہ اپنا وجود کھو چکا ہے۔ لوگ بھول چکے ہیں کہ کبھی پاکستان کے اندر 3 وقت کھایا جاتا تھا۔ تو آج ہم مہنگائی کے حوالے سے جو روز افزوں بڑھتی جا رہی ہے، جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور حکومتی داموں کے باوجود اس پہ کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی جو ان اداروں کی پرائسز کنٹرول کرنے والے ہیں وہ بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ یوں کہیں کہ دنیا پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام کس مشکلات کا شکار ہیں۔ تو آج ہم کچھ لوگوں سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے مہنگائی کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر شعبہ ہمارے ہاں ایک مسیحا کا کردار رکھتا ہے، اور اس کا نہ صرف مسیحا ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر مسیحا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک میں تو وہ ڈاکٹرز کے لیے یعنی طب کے حوالے سے لیا گیا ہے۔ تو میرے مشاہدے میں آیا ہے، میرے سروے رپورٹ میں آیا ہے کہ ڈاکٹرز بھی اس سے مبرہ نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کریں، اور کوئی ایسی تجاویز جو ان کے پاس ہو جو حکومت کو دیں تاکہ پاکستان کے عوام اس مہنگائی کے افریت سے نجات حاصل کر سکیں۔ جناب ڈاکٹر سہیل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ میں پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ یقین مانیں بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ غریب آدمی کے لیے یہاں پہ جینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں پر مہنگائی، میں ملک سے باہر بھی گیا ہوں تو یقین مانیں جاپان اور سعودیہ سے زیادہ یہاں پہ مہنگائی ہے۔ لوگ یہاں پر بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے یقین مانیں مر رہے ہیں۔ بجلی کے بل ان کے اتنے آ رہے ہیں کہ وہ بھی، ابھی میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے ایک گھر کا ایک فیملی ہے جس میں ایک میاں بیوی اور ایک بیٹی ہے، ان کی 40,000 روپے ان کا بل آیا بجلی کا۔ تو اتنی مہنگائی میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جینا آسان ہے۔ لہذا میں ارباب اختیار سے یہ بات کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ ملک کے لیے کچھ کریں۔ ملک کا باپ ہیں آپ، وزیر اعظم صاحب ہیں یا آرمی چیف ہیں، جو بھی ہمارے ہیں بڑے، وہ ملک کے باپ ہیں، ہم ان کے بچے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ خود تو IMF سے قرضہ لے کے اور اپنے اللہ تللے اور اپنی عیاشیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کریں۔ میں بھی ایک باپ ہوں، میں اپنے گھر میں یقین مانیے گا میرے پاس گاڑی ہے، وہ میں نے کھڑی کر دی ہے۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، میں نے گاڑی کھڑی کر دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا، اور اتنے مہنگے پیٹرول میں گاڑی کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا ملک غریب ملک ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ غریب ملک ہے۔ اگر غریب ملک ہے، جو وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، وہ کراچی سے اسلام آباد آنے کے لیے 28 لاکھ کا پیٹرول لگا سکتا ہے، وہ 25,000 کی ٹکٹ لے کے بھی آ سکتا ہے۔ غریب ملک ہے، غریبوں پر کوئی ترس کرے، اپنی عوام پر، اپنے بچوں پر۔ میں نے آپ کو درجہ دیا ہے باپ کا، وزیر اعظم ایک باپ ہے، آپ ایک باپ بنیں اور اپنے بچوں پر ترس کریں۔ یقین مانے یہاں پہ عوام مر رہی ہے۔
डॉक्टर साहब ये जो आपने अभी अब्रॉड का जिक्र किया, आप बाहर भी गए हैं, तो मैं भी काफ़ी मुल्कों का विज़िट कर चुका हूँ। वहाँ देखा है कि वहाँ की जो महंगाई का तनासब होता है वो अकॉर्डिंग टू उनकी वेजिस होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इस हवाले से क्या करना चाहिए? मैं यही बात कर रहा था कि जापान में एक मजदूर जो है, डेली वेजिस वाला मजदूर जो है, वो 5 लाख रुपए महीने के कमाता है, और उधर महंगाई पाकिस्तान में महंगाई वहाँ से ज़्यादा है, और यहाँ पर एक मजदूर बेचारा जो है वो 25-30 हज़ार रुपये कमाता है। लिहाजा हमारे मतलब पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो अल्ले तल्ले अपनी याशियों को बंद करें और अपनी आवाम के बारे में कुछ सोचें। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है, ये जो मराहत इन सैनिटर्स को, कौमी असम्बली के मेम्बरान को, सूबाई असम्बली के मेम्बरान को, वज़रा को दी जाती हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं यही बात कर रहा हूँ कि इनको अपनी अय्याशियाँ बंद करनी चाहिए। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, अय्याशियाँ बंद करें, अवाम का जो सोचें, अपने बच्चों का कोई सोचें, हम आपके बच्चे हैं, अपनी अवाम का कोई सोचें प्लीज़, अपनी अय्याशियाँ बंद करें। ये बहुत अमीर है, सैनिटर जितने भी हैं ना, या जितने भी MN MPs हैं या वज़ीर आज़म, बहुत अमीर आदमी, इनको तनख्वाहों की, मराहत की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनका सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये यकीन माने अपनी याशियों के लिए IMF से मैं इस दफ़ा, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यकीन माने इस दफ़ा बड़ी दुआ की कि या अल्लाह हमारी हुकूमत को IMF से कर्जा ना मिले, अल्लाह इनको कर्जा ना मिले। अगर इनको कर्जा मिल गया तो इन्होंने हमारे ऊपर ये सारा लाद देना है। और देख लें 8-10 रुपये बिजली महंगी कर दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया है, ये जितना भी बोझ है वो सारा अपने बच्चों पे डाल देते हैं, अपनी आवाम पे डाल देते हैं, और खुद अय्याशियाँ करते रहते हैं। और यही नहीं कि अभी IMF ने अभी सिर्फ मंजूरी दी थी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम जो हाई ऑफिशियल्स थे, जिनमें AC DC कमिश्नर वगैरह, उनको नई गाड़ियाँ तक हाँ जी, बिल्कुल नई गाड़ियाँ लेके दी, मुझे पता, मैं यानी बाखबर हूँ इससे। तो अब मैं यही बात कर रहा था कि अपनी अय्याशियों को बंद करें प्लीज़, और अपने बच्चों के बारे में, अपनी आवाम के बारे में सोचें। यकीन माने 25 करोड़ आवाम मर रही है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है जो मेरे दिल को भी लगी है, कि रियासत जो है वो हमारे बहुत ही बड़े सियासतदान है एतजाज़ अहसन साहब, और बहुत बड़े वकील भी हैं, तो वो उन्होंने एक नज़म लिखी हुई है कि रियासत जो है उसका किरदार माँ की तरह होता है। तो इन्होंने बाप का दर्जा दिया है। बाप वाकई घर की कफालत करता है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी है। ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की तरफ से भी मर्द पे ये जिम्मेदारी डाली गई है कि उसने अपने घर की कफालत करनी है। तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, अरबाब इख्तियार के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है डॉक्टर सोहेल अहमद साहब ने, कि खुदारा अपने बच्चों पे, यानी 25 करोड़ आवाम जो है वो आपके बच्चे हैं, और इनकी निगहदाश्त, इनकी हिफाजत, इनकी आबियारी, इनकी तालीम व तरबियत, इनकी सेहत आपकी ज़िम्मेदारी है। और अपने फ़राइज़ से गफलत ना करें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ एक बाप की तरह निभाने की कोशिश करें। शुक्रिया। जी नदीम साहब, ये आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान है, जिससे सारी कौम जो है वो बुरी तरह मुतासर है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके कारोबार पे कितने असरात मुरतब हुए हैं? खाली हमारे कारोबार, सब कारोबार पे असरात है। कस्टमर की कुव्वत खरीद बहुत, वो बिजली के बिल, घर के अखराजात नहीं पूरे कर रहे, शॉपिंग क्या करेंगे? सही, इतने मुश्किल हो गए। दुकानदारों के इधर पता करें आप, 3-3 माह के किराए ऊपर चढ़ गए हैं, वो दिए नहीं जा रहे, बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे। इधर महंगाई, डॉलर चला गया 300 से बव कर गया, 304 रुपये हो गया। जो माल है वो इधर पाकिस्तान की इंडस्ट्री के माल मिल नहीं रहे, माल है नहीं, इम्पोर्टेड जो माल है वो इतना महंगा है, वो गाहक की दुकानदार नहीं खरीद रहा। पहले जो एक खाने का माल हम लाते थे 30,000 खाना बन जाता है, 40,000, अब लाख से ऊपर जा रहा है। वो इन्वेस्ट इतनी कहाँ से करेगा दुकानदार? जो इन्वेस्ट 10 लाख से कारोबार कर सकता था, अब वो 50 लाख में भी नहीं पूरी हो रही। डॉलर पहले
100 के लगभग था वो, उस वक्त बिल्कुल 100 के ऊपर 125 तक भी ठीक चल रहा था। जब ऊपर जाना शुरू हुआ उस वक्त से मुल्क की हालात बदतर होते जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में अब क्या करना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ऊपर कंट्रोल करे, डॉलर को कंट्रोल करे, ऑयल को कंट्रोल करे। ये खुद डिस्प्ले को घूमते हैं, डिमी है बिल्कुल। जो स्टैचू लगा दिया स्टैचू है बस, ऊपर हुक्मरानी और IMF जब चाहे रेट बढ़ा देती है, जब चाहे वो डॉलर को बढ़ा दे, जब चाहे वो ऑयल को बढ़ा दे, बिजली के बिल बढ़ा दे, इनके अख्तियार में ही नहीं है। जब इनसे ये कहते हैं मीडिया पे सामने आके IMF नहीं मान रही, IMF वो आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, सही, इनके अपने कंट्रोल में ही नहीं है। पाकिस्तान के IMF के कंट्रोल में दे दे, ऑलरेडी है तो उनके कंट्रोल में। बस ये है कि इनडायरेक्ट उनके पास। हाँ जी, ये डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर रहे। सही कह रहे हैं। ठीक, तो आप लोग फिर किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? जाहिर सी बात है आपके घर के अखराजात, दुकान का किराया, दुकान का बिजली का बिल, ये वो, तो फिर इसका मतलब है आप मकरूज होते जा रहे हैं। सारे दुकानदारों को यही हाल होता जा रहा है। पाकिस्तान मकरूज, पूरा मुल्क ऐसे ही हालात होते जा रहे हैं। जो ज्यादा सरमाएदार दुकानदार है ना, वो भाव हो जा रहा है, उसका बड़े माल के रेट बढ़ रहे हैं। सही, जो होलसेलर है, जो होलसेल ऊपर ज्यादा ज्यादा स्टॉक जिनके पास होता है। जो कम स्टॉक वाले दुकानदार होते हैं, उन्होंने तो रोज की दुकानदारी के लिए माल खरीदना है, रोज की दुकानदारी करनी है। जिन्होंने रोज की दुकानदारी के माल खरीदना है, उनके पास डेली नया रेट आता है। इधर से खरीदा कुछ रेट पे, अगले हफ्ते रेट चेंज हो गया। अभी सेल जिस रेट पे खरीद उससे महंगा अगले हफ्ते कई दफा हमें खुद खरीदना पड़ जाता है। तो उस कमाई का क्या फर्क, क्या बनेगा? जो पहले वो तो नुकसान हो गया उल्टा, जो बेचा है माल। ऐसे हालात होते जा रहे हैं। तो आपके कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को कोई ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे हुकूमत है ही नहीं, इकदाम क्या उठाएगी? वो तो गुलाम हो चुकी है। जो भी आता है IMF के कहने पे आ रहा है, IMF के कहने पे ही रेट बढ़ रहे हैं, IMF के कहने पे ही सारे काम हो रहे हैं। इनके इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। ये क्या करेंगे? जी, शुक्रिया नदीम साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी बातचीत सुन के बहुत तकलीफ भी हो रही है। जाहिर सी बात है, हम भी इसी आवाम का हिस्सा है, हमारे भी वही मसाइल हैं जो आपके मसाइल हैं। इसी वजह से निकले हैं हम, ताकि लोगों के व्यूज़ लिए जाए, लोगों की जो है मुश्किलात जो है वो आम लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि वो भी इस सिलसिले में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, मैं इस वक्त सरदार जी कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी शॉप पे खड़ा हूँ। इस वक्त हमारे साथ सरदार हरजिंदर सिंह खालसा साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई रोज़ ऑफ जो महंगाई है, उसके असरात इनके कारोबार पर किस हद तक पड़े। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, जैसे आपको पता है पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ पे असर पड़ता है उसका। तो हमारे मुल्क में महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसकी वजह से जितने भी हमारे कारोबार हैं, चाहे कॉस्मेटिक का है, कपड़े का है या जूतों का है, वो सब कारोबार हमारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। लोग इतने परेशान हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने घरों के बिल पे करें या घरों का राशन या बच्चों की तालीम करें, या ये हम जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसके ऊपर हम करें खर्च। तो महंगाई जो है इस वक्त तो वो हर बंदा इससे परेशान है। तो अगर कुछ पेट्रोल वगैरह कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएं तो फिर लोगों के पास उम्मीद है कि कुछ बजट बच जाएगा कि उससे कपड़ा, जूता और ये कॉस्मेटिक ये दूसरी चीज़ें वो ख़रीदें और कारोबार के कुछ हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं। शुक्रिया सरदार साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा, एक सियासी सवाल छोटा सा, चूँकि खालसा तहरीक इंडिया दोबारा मुतहरक हो गई है, उस हवाले नाल तुहाडा की ख्याल?
ਖਾਲਸਾ ਤਹਿਰੀਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਉਭਰੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जी हमजा साहब, ये आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगाई है, तकरीबन तमाम कारोबार मुतासर हो चुके हैं, लोग बड़े परेशान हैं बिजली के बिलों की वजह से, दीगर मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो गया है। तो इसके आपके कारोबार पे क्या असरात मुरतब हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे सलाम करता हूँ। दूसरे नंबर पर ये मैं बात करता हूँ कि कारोबार में काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान वगैरह हो रहे हैं। ये सारा जो है ना हमारी हुकूमत की वजह से है। हमारी हुकूमत से अपील है कि उनको चाहिए कि इंशाल्लाह हमारे कारोबार पर बेहतरी करे। कारोबार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसका हल क्या है? आप कारोबारी तबका है, आप क्या तजवीज़ करना चाहेंगे हुकूमत को? जी देखें जी, हम यही कहेंगे कि उनकी मेहरबानी है, सिर्फ मेहरबानी ही कर सकती हैं उनकी, और कुछ भी नहीं कर सकते। कि वो हम पे रहम खाएँ हम पर, और हमारा कारोबार काम चलेगा तो हमारे घर के सिलसिले कार चलेंगे। क्या ख्याल है कि हुकूमत को ऐसा नहीं चाहिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कारोबारी तबका है, ताजर तंजीमें हैं, ईमान सनत व तिजारत है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको कोई भी मुआशी पॉलिसी बनाते वक्त उनको साथ ले? जी बनता तो यही है, पर वो बस खुद ही की अपनी ही मानते हैं। अपनी ही मानने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते, वो ज़िंदगी में फेल ही होते हैं। यानी वो IMF की मानते हैं? जी बिल्कुल वैसी ही बात है, वो IMF की मानते हैं। पर ये जो है इधर बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क को नुकसान है इस चीज़ का। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमजा साहब, इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात आपसे होती रहेगी। नाज़रीन इकराम, अभी आपने देखा कि महंगाई के हवाले से लोग कितने परेशान हैं और उन्होंने अपने मुख्तलिफ तासरात बयान किए हैं, और ये उससे एक ही बात का अंदाज़ा होता है कि हुकूमती पॉलिसियाँ जो है वो इस कदर नाक़िस हैं कि वो सिर्फ़ एक मखसूस तबके के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, अब आवाम के लिए नहीं बनाई जाती। मुल्की पॉलिसियाँ नहीं होती, मखसूस लोगों के लिए बनाई जाती हैं, और वो भी IMF के आशीर्वाद पे बनाई जाती हैं। जो वो डायरेक्शन देती हैं उसके मुताबिक पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं शदीद मुश्किलात का शिकार है महंगाई के हवाले से। बहुत सारी उनकी शिकायत हैं। हर एक को तो हम जो है वो शामिल इंटरव्यू नहीं कर सकते, लेकिन जिन जिन लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है उन्होंने बड़े जो है दुख का इजहार किया है कि इस वक्त हम लोग काफ़ी मजबूर हैं कि बिजली के बिल अदा करें, बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से हम अखराजात जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दुकानदार अपना 3-3, 4-4 महीनों से किराया तक नहीं अदा कर रहे। तो नाजरीन, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कैमरामैन जनाब ज़ेब रिजवी के साथ साजिद विरक आपको सलाम पेश करता है, और इन्हीं अल्फाज के साथ दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को दूर करने में हमारी मदद फरमाए। अल्लाह हाफिज़।